हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ एस के चौधरी हाजिर हैं आपके अपने चैनल पॉइंटर पर आज एक नया फ्रेश टॉपिक लेकर ऑन योर डिमांड्स। यूनिट एंड मेजरमेंट इज अवर चैप्टर। 11th क्लास का सिलेबस प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है और आपने मुझे पुश कर विद इन 2 or 3 days सेकेंड वीडियो लाने पर मजबूर कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर with new flavor, new clever with new caliber. Thank you very much for joining us. Now let's start. Our chapter is chapter 2. Chapter name is units and measurement. Unit and measurement. Unit and measurement. So units are measured. Units are measured, or for the measurement of any quantity we need unit. So these two quantities are related to each other both ways. Units are for measurements and measurements requires units. So our first topic is what? Need of measurement. आखिर हमें मेजरमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज दैट वी गो टू द मार्केट एंड वी सेड दैट गिव मी पोटैटो. व्हाट विल शॉपकीपर सेज दैट? हाउ मच? सो दैट इज आवर नीड. ओके, व्हेनेवर वी गो टू समवेयर, व्हेन वी गो टू समवेयर, सो पर्सन विल आस्क यू फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, हाउ मच डिस्टेंस you have covered, which direction you are going. These all are the measurement quantities which we will discuss in upcoming session. So need of measurement first we will understand. So for understanding this we start from physics. What is physics? Physics is a science, or you can say that branch of science, branch of science which dealing with nature and natural phenomena. Natural phenomena. और दूसरे वर्ड्स में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फिजिक्स, जैसा कि ये डेफिनेशन है, ये भी नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट फिजिक्स को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट. सो बोथ आर द कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, बोथ आर द सेइंग सेम थिंग. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट. For understanding this, we take an example. Suppose that we have an rocket. We have an rocket. Rocket is going towards the sky. Rocket may be by NASA, maybe by ISRO, or maybe by you in your festive Deepavali. So that rocket is going towards the sky. So sometimes the question rise, or definitely question will rise, how much height it cover? How much height it cover? What velocity it have during this journey? What is the mass of rocket? How much time rocket taking to that particular point? Amount of fuel, amount of fuel used during the journey. If rocket is flying in the night, the another question rises in our mind, is it visible? Is it visible? Or you have seen the rocket? Or during the journey we can ask the temperature of atmosphere.
temperature of atmosphere. We can ask what is the temperature of atmosphere, what is the temperature of rocket as well as. So these type of questions rise in our mind during the any object falling. We can take another example. We can take that we are throwing a stone from our you can say that hill. We are suddenly the mobile is fallen down from our hand. So same questions are rise in our hand. Or suppose that screen is break. Suppose that mobile screen is, unfortunately mobile screen is break. So you can consider the mass of the mobile. There is no fuel during the fall of your mobiles, but remaining things will remain as it is. So these are the quantities which are considered during the any object falling or going upward. So by considering these points, we can easily understand what is the need of measurement. What is the need of measurement? So understanding these concepts, we move to the forward. अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी. नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब हमें यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ेगा. अभी तो हमें सब याद है कि भाई मास के लिए कौन सी यूनिट होती है, इसके लिए कौन सी यूनिट होती है, बट इनिशियली थिंक दैट we are going to take the 1 kg potato in the market and we said that give me 1 second potato, give me 1 meter potato. Is it possible? So we have to decide it what is the actually quantity and how we select the unit during the chosen criteria of quantity. The chosen criteria for any quantity is what? First, the size of, suitable size of unit, suitable size. Okay, suitable size. सेकेंड पॉइंट क्या आ सकता है जब हम अपनी यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं? भाई आप सब लोग मार्केट जाते हैं तो सुटेबल साइज, सुटेबल साइज से समझ गए ना कि कौन सी यूनिट सेलेक्ट करनी है, किसके लिए क्या है. प्रिसाइज, जब आप पोटैटो लेने जाते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका आलू 1 kg ही हो. ओके, आपका मिल्क 1 लीटर ही हो. तो प्रिसाइजली मेजर्ड, तो हमने उसको प्रिसाइजली मेजर्ड किया है, डिफाइन करा है और हमने अपनी एक स्टैंडर्ड लैब में उसका एक डमी रख दिया है. कभी डिस्प्यूट हो जाए, सपोज दैट चाइना बोलता है आवर 1 kg इज बेटर, इंडिया बोलता है आवर 1 kg इज मोर एक्यूरेट, डिस्प्यूट हो गया दोनों कंट्रीज में, हु विल सॉर्ट आउट इट? तो इंटरनेशनली लैब्स में, इंटरनेशनली लेबोरेटरीज में हमने रेफरेंस के लिए 1 kg, 1 मीटर, 1 वगैरह सब हमने रखा हुआ है यूनिट क्वांटिटी वहाँ पर. ये हो गया सेकेंड. नाउ थर्ड, और क्या हो सकता है प्रिसाइजली मेजर्ड करने के अलावा हमारे और कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं? इजीली एक्सेसिबल. इजीली एक्सेसिबल से मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपसे बोला लैब में जाके आप उसको कर सकें या हम उसको इजीली यूज कर सकें. ओके, हम उस क्वांटिटी को इजीली यूज भी कर सकें. तो इजीली क्या होता है इसका मतलब? इजीली एक्सेसिबल. ठीक है. थर्ड पॉइंट, अब हम किसी क्वांटिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? इजीली रिप्रोड्यूसिबल. इजीली रिप्रोड्यूसिबल. नोट्स बनाने चलेंगे साथ साथ. लेंदी जरूर है बट इंटरेस्टिंग बहुत है, फंडामेंटल है और इंपॉर्टेंट है. इजीली रिप्रोड्यूसिबल, तो कोई यूनिट अपने आप को कैसे कन्वर्ट कर सकती है, मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर में वगैरह वगैरह, हम उसे क्या इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारी कंडीशन होती है. एंड अब इसके बाद क्या आता है जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं? एंड यूनिट शुड जो क्वांटिटी हमने सेलेक्ट करी है, जो यूनिट हमने सेलेक्ट करी है, शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, प्लेस. यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशंस. फिजिकल कंडीशंस, अभी फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह, वो हम डिस्कस करते रहेंगे. अभी फिलहाल इतना ही नोट कर लीजिए. तो समझ लेते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट. किसी भी क्वांटिटी को सेलेक्ट करने से हम 4 लेते हैं और उसके साथ साथ वो क्वांटिटी समय के साथ साथ बदलनी नहीं चाहिए, टाइम और प्लेस के. सपोज दैट हेयर in Delhi we measure 1 kg potato, but whenever we go to the Mumbai, the potato is not 1 kg, it remains it reduces half kg.
So for the time being and for the place being, the quantity should not be changed. The unit will not be changed, standardized form. Okay ना? Taking the other conditions are remain constant. Okay? Potato आप खा गए तो उसका कोई solution नहीं है भाई, ठीक है ना? बट अगर हम यहाँ से लेके जा रहे, सपोज हम 1 kg कोई बढ़िया सी सिंगल स्वीट्स लेके गए और वो रास्ते में आपने खा ली, वो तो रिड्यूस होनी है, उससे क्या मतलब है? बट रिमेनिंग द फिजिकल कंडीशंस एंड पैरामीटर्स सेम, द स्वीट्स quantity and quality remain same till the destination. So that is what the conditions during the selection of any quantity. तो इनको आप नोट करें और मैं आपको अभी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज और बताता हूँ, क्योंकि हम जब किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फिजिक्स, एंटायर फिजिक्स, टोटल फिजिक्स डिपेंड्स ऑन 7 क्वांटिटीज, है ना फिजिक्स? So what are those 7 quantities? Let's start discussion. So those quantities are the fundamental quantities. Fundamental quantity have the fundamental unit as well as fundamental units. What are those fundamental units? See here. सबसे पहले उस क्वांटिटी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, क्वांटिटी. क्वांटिटी का नेम हो गया यहाँ पर, देन उसकी यूनिट, देन उसका सिंबल. So see that what quantity we have, what symbol we have, those quantities. So our first quantity is what? Our first quantity is what? Our first quantity is for distance. So distance may be length, maybe width, or maybe radius, maybe depth, maybe height. So length, L-E-N-G-T, length. Length की यूनिट क्या होगी? मीटर. You know very well that this is the first fundamental quantity. Symbol is small m. Second fundamental quantity क्या होगी हमारी? Second fundamental quantity कोई बता सकता है हमारी क्या होगी? Second fundamental quantity है हमारी mass. Second fundamental quantity है हमारी mass, और mass का क्या है? किलोग्राम. ये हमारी उसकी यूनिट है. और सिंबल क्या होता है किलोग्राम का? kg. You know very well that. थर्ड हमारी क्वांटिटी है टाइम. टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. सेकेंड का सिंबल क्या है? सेकेंड का सिंबल क्या है? स्मॉल एस. नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारी? नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारी? टेम्परेचर. टेम्परेचर. टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन. और केल्विन का सिंबल क्या है? कैपिटल के. ठीक है. 6 क्वांटिटी क्या है हमारी? 6 क्वांटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है हमारा? एम्पियर. एम्पियर. सिंबल क्या है इसका? कैपिटल है. फिफ्थ क्वांटिटी है हमारी. 6 क्वांटिटी क्या है हमारी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो साइड में फिगर बनी हुई है उसमें सब है, उसमें ये सब मैंने मेंशन किए हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, और इसका सिंबल होता है MOL, स्मॉल m. ठीक है. और लास्ट क्वांटिटी क्या है हमारी? फंडामेंटल लास्ट क्वांटिटी क्या है हमारी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? कैंडेला से. कैंडेला इसकी यूनिट होती है CD. सो दीज आर आवर 7 क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय इन आवर फंडामेंटल सेक्शन. सो सी हियर, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड से. ठीक है. मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? kg से. टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केल्विन से. वेलोसिटी को हम करते हैं मीटर पर सेकेंड से, ये अभी आने वाला है. हाइट को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से. विजिबिलिटी को हम किससे मेजर करते हैं? कैंडेला से. ठीक है. और हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल से. ओके. सो दीज आर अवर फंडामेंटल क्वांटिटीज ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दैट रॉकेट. ओके. नाउ कम टू दिस दैट पॉइंट. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी is what? Derived quantity. So we will discuss in our next video. So we are giving a link for next video also. For supporting these quantities,
After some time we realized that कि our work in physics is done with the help of these 7 quantities. No other quantities are required. But for supporting nature, we have 2 supplementary quantities. An interesting thing is that supplementary quantity have no dimension. These quantity have dimensions. What are the dimensions? I am giving you here. The dimension of mass is capital M. Dimension of length is capital L. Dimension of mass is capital M. And dimension of time is capital T. Dimension of temperature is capital K. Dimension of ampere is capital A. Dimension of mole is MOL. And dimension of catalyze is C. D remain as it is. So these are the symbol and these are the dimension symbol. Dimensions symbol. ये आएंगे आगे, वहाँ भी हम उनको एक बार बता देंगे, यहाँ भी बता देते हैं. बट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी के सपोर्ट के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई. क्या है वो? ये सिर्फ 2 ही यूनिट है. जैसे किस एंगल पर ये रॉकेट हमने लॉन्च करा, तो ये आ जाती है पहली, उसको बोलते हैं रेडियन. रेडियन ये 2D होता है, 2D एंगल होता है. ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है RAD, रेडी. RAD रेड हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं. ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है रेडी. तो ये प्लेन एंगल होता है 2D जिसको हम बोल सकते हैं, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं यहीं पर आगे करके प्लेन एंगल की फॉर्म में. तो पहली क्वांटिटी होती है हमारी प्लेन एंगल. प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल 2D में होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या है. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और जिसका सिंबल होता है RAD. ठीक है, इस क्वांटिटी का सिंबल होता है इस तरीके से. दूसरा और लास्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है हमारा क्या होता है? सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन से. स्टेरेडियन, और इसका जो यूनिट सिंबल होता है वो ऐसा होता है. सो दीज 2 क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, बट दीज 7 क्वांटिटीज हैव द dimension, that is important and measure points. Okay, so these fundamental quantities have 7 dimensions, but these have no dimension. Now what is the plane angle? So that is our plane angle is theta. और suppose that we have cone, आइसक्रीम वाला कौन होता है ना, वो उसके बीच में जो एंगल बन रहा होता है, ये यहाँ पर जो पूरा एंगल बन रहा होता है, ये मेजर होता है SR से, स्टेरेडियन से, और ये मेजर होता है रेडियन से. तो ये 3D एंगल होता है, बेसिकली 3D शेप होती है, 3 डायमेंशन होती है, और ये 2D शेप होती है. 2D शेप लाइक आवर बोर्ड, और 3D शेप लाइक माई बॉडी, हैव द हाइट, विड्थ एंड डेप्थ. These things are considered as a 3D. So these are the quantities, these are the unit and measurement fundamental structure. Entire physics depends on these 7 quantities and supported by these 2 supplementary quantities. And example are there. You can take it, the screenshot, you can by the making the pause, you can make the notes. That is what our first lecture, first video related to our syllabus. Thank you very much. मैं आपका host and दोस्त SK चौधरी. Give me suggestion, feedback, play, subscribe your channel. Thank you very much. Pointer.